Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you are doing well. So today in this video we are going to solve today's lead code problem, that is Dota to Senate, right? So as usual, first of all we'll be going through the problem statement, and as you can see there's lots of theory for this problem. So we'll be going through it, and in parallel we'll be having an understanding what actually the problem is asking for, and then we'll be having a look on the approach as well as the code part. So before proceeding further, make sure to subscribe my channel if you haven't done so till now, and do join our Telegram community. You can follow me on other platforms as well. The link is there in the description itself, so do check them out. So let's get started with the problem statement now. In the world of Dota 2, there are two parties, the Radiant and the Dire, right? So the Senate consists of senators coming from two parties. Now the Senate want to decide on a change in the, well, there is some part which is not actually contributing to the problem, but just for the formality basis, I'm going through the problem statement. Okay, so let's start from here. So given a string Senate representing each senator's party belonging, the character R and D represent the Radiant party. So basically we are having a string Senate, right? And it consists of two characters, R as well as D, where R denotes the Radiant party and D denotes the Dire party. There are n senators, where this is the size of the given string, that will be n. So the round based procedure starts from the first senator to the last senator in the given order. The procedure will last until the end of the voting. All the senators who have lost their rights will be skipped during the procedure. See, so regarding rights here, they have mentioned what could be done. So the voting for this change is a round based procedure. In each round, each senator can exercise one of the two rights. One is ban one senator's right. So a senator can make another senator lose all his rights in this and all the following rounds. Announce the victory. If the senator found the senators who still have rights to vote or all from the same party, he can announce the victory and decide on the change in the game, right? So here they have mentioned that suppose every senator is smart enough and will play the best strategy for his own party, predict which party will finally announce the victory and change the Dota 2 game. The output should be Radiant or Dire. तो एक बार इसको एग्जांपल से समझते हैं. आई होप कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ना उतना अच्छे से भी क्लियर नहीं हुआ होगा, राइट? तो हमारे पास सेनेट दिया है, ठीक है. ये क्या है, एक स्ट्रिंग है जिसमें हमारे पास कैरेक्टर्स क्या है, आर एंड डी, जहाँ पे आर डिनोट कर रहा है रेडिएंट एंड डी डिनोट कर रहा है डायर पार्टी, ठीक है. तो हमें ये बताना है कि कौन सी पार्टी जो होगी हमारी जीतेगी, राइट? विक्ट्री बेसिकली कौन सी पार्टी कर रही होगी, तो वो हमें बताना है. जैसे इस केस में हमारे पास रेडिएंट पार्टी जीत रही है. तो देखो, जो फर्स्ट सेनेटर है यहाँ पे हमारा, वो आ रहा है रेडिएंट पार्टी से, ठीक है. तो ये क्या कर सकता है, ये क्या, देखो यहाँ पे एक रूल दिया है, जो अपना ये लाइक दूसरे सेनेटर, देखो दूसरे सेनेटर के पार्टी को क्या कर सकते हैं कि उसके सारे राइट्स वो लूज कर दे. एक तरीके से एलिमिनेट कर सकता है, एलिमिनेट ऐसे मान चलो एलिमिनेट कर सकता है, ठीक है. इसको एलिमिनेट करने का राइट है, ठीक है. जैसे ये वाला हमारा फर्स्ट सेनेटर, जो सेनेटर जो है वो अपनी पार्टी के पर्सन को तो नहीं एलिमिनेट करेगा, है ना. अपनी वाली के एलिमेंट्स को, अपने वाली पार्टी के लोगों को ये क्यों कम करेगा, है ना. ऑब्वियसली ओपोनेंट वाले को करेगा. तो आर जो है हमारा, इसके अभी अपोनेंट में कौन है, डी है, ठीक है. तो डी के ये सारे राइट्स ले सकता है, या ऐसे मान चलो उसे एलिमिनेट कर सकता है, ठीक है. तो जो सेकंड सेनेटर है, इसने क्या किया, इसके सारे राइट्स इसको एलिमिनेट कर दिया. तो अब ये कोई राइट्स नहीं कर सकता. it cannot exercise any rights since his right has been banned. ये बैन कर दिया, आर ने डी के राइट्स को बैन कर दिया. अभी अब ये डी तो आउट ही हो गया गेम से. तो अभी किस पार्टी के हमारे पास एलिमेंट बचा हुआ है, आर का बचा हुआ है, रेडिएंट पार्टी का बचा हुआ है. तो वो क्या अपनी विक्ट्री अनाउंस कर देगा. वो देखेगा अरे कोई और एलिमेंट है ही नहीं, मैं मतलब हमारी पार्टी का ही है एक, तो रेडिएंट हमारा जीतेगा इधर इस केस में, ठीक है. एक बार इस एग्जाम्पल से समझते हैं. तो फर्स्ट हमारे पास है रेडिएंट पार्टी से. अभी क्या बोला कि ये अपने नेक्स्ट सेनेटर को बैन कर सकता है, एलिमिनेट कर सकता है. तो आर ने डी को एलिमिनेट कर दिया, आर ने डी को, और ये प्रोसीजर राउंड बेसिस पे चल रहा है. तो आर ने डी को एलिमिनेट कर दिया. अब आया डी,
तो डी है जो जो हमारा डी है, ये वाला डी तो हमारा एलिमिनेट हो गया, आर ने इसको एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास आया डी, तो ये डी ने एलिमिनेट कर दिया आर को, ठीक है, ये डी ने एलिमिनेट कर दिया आर को। देखो ये यहाँ पे मेंशन है, द फर्स्ट सेनेटर कम्स फ्रॉम रेडिएंट एंड ही कैन जस्ट बेंड द नेक्स्ट सेनेटर्स राइट इन द राउंड वन, ठीक है। एंड देन द सेकंड सेनेटर, this one, this senator they're talking about, this D, it cannot exercise any right anymore because its right has been banned. Now the third senator comes from Dyer, this one. Okay, so he can ban the first senator's right in round one. Which one? This one, this R they are talking about. And in round two, the third senator can just see. Now, like these are not in the picture, right? Only this one is, and this belongs to which party? This belongs to Dyer, right? So that's why Dyer will win, right? So basically, if you will observe, right, and here they have clearly specified this one thing, that every senator is smart enough and will play the best strategy for his own party. So the best strategy what could be played is that कि जो भी senator है वो अपने अपोनेंट वाले जो उसके क्लोज है, जो अपोनेंट वाला जो उसके क्लोज है उसको बैन कर दे, उसको एलिमिनेट कर दे, ठीक है। तो हमें इस चीज का ये ट्रैक ऑफ रखना है कि जैसे हमारा यहाँ पे आर आया फर्स्ट, तो इसके क्लोज सबसे सबसे क्लोज कौन सा है, ये जो हमारा अगर इंडेक्स बेसिस पे बोल दें तो फर्स्ट इंडेक्स पे है ना, तो इसको पहले बैन कर दिया, ठीक है। तो यही चीज हमें बेसिकली इसमें करनी है, इसने इसको बैन कर दिया, देन हमारे पास डी बचा था, डी बचा था। एंड राउंड बेसिस पे हम यहाँ पे कर रहे हैं, राउंड बेसिस पे एक बार एक एग्जांपल लेके लेट मी एक्सप्लेन हियर। ओके, आर डी डी, ठीक है। तो ये हमारा 0 पे है, ये हमारा 1 पे है, एंड नेक्स्ट वन इज ऑन सेकेंड इंडेक्स, ठीक है, ठीक है। तो हमारा गोल क्या है कि जो सबसे क्लोजेस्ट वाला है, जो हमारे सेनेटर है ना क्लोज वाले को, हम उसको बैन कर देंगे। तो आर के सबसे क्लोज कौन सा है? डी है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसको बैन कर दिया, ठीक है ना। अब ये आर हमारा स्टिल पिक्चर में रहेगा, बट देखो अब ये डी, हमारे पास डी आएगा एंड डी ये आर को बैन कर देगा। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि क्योंकि राउंड बेसिस पे चल रहा है ना, राउंड जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन है, somewhere it was mentioned that the round based procedure start from the first senator to the last senator in the given order. So जो D है हमारा, ये R को, ये D है जो हमारा सर्किल में हम मोशन में घूमते हुए आए, तो D ने देखा अच्छा मेरे क्लोज कौन सा है, मेरे क्लोज अब ये R है, तो मैं इसको बैन कर देता हूँ। तो लास्ट में हमारे पास देखो देखो दो ही केसेस होंगे, या तो R के सारे रिमूव हो जाएंगे या D के सारे रिमूव हो जाएंगे, है ना। फिर जो भी हमारे पास बचेगा, एक ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो आर के सारे रिमूव हो जाएंगे या डी के सारे रिमूव हो जाएंगे, एंड फिर बाद में जो भी एलिमेंट्स बचेंगे वो एक ही पार्टी के होंगे। जैसे अभी यहाँ डी बचा है तो वो डी से ही बिलोंग कर रहा है, या और भी हम ले सकते थे टी डी आर डी, इस तरीके से आप टेस्ट केस लो एंड देन उस पर इटरेट करके देखो, देन यू विल बी हैविंग द बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करें, अब हम बात करें कि क्लोजेस्ट की, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर लेंगे। तो दो क्यू को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फर्स्ट इज टू कीप ट्रैक ऑफ द इंडेक्स रिलेटेड टू द रेडियंट एंड अनदर वन इज फॉर द डायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पहले हम वी आर गोइंग थ्रू दिस स्ट्रिंग एंड देन वी आर चेकिंग that if the character which right now we are pointing to, if it is r, then we are pushing it to this q, r index, right? Otherwise we are putting it to the d index, right? तो पहले हमने ये किया, हमने अपनी क्यू क्रिएट कर ली, ठीक है, एक में हमने स्टोर कर लिया। लेट्स से इफ वी आर टेकिंग दिस टेस्ट केस ओनली, तो आर इंडेक्स में हमारे पास, आर इंडेक्स में अभी हमारे पास क्या हमारे पास क्या इंडेक्स पड़ी होगी, 0, एंड देन डी इंडेक्स में हमारे पास पड़ी होगी 1 2, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हम एक व्हाइल लूप लेंगे एंड तब तक कंटिन्यू, देखो एक ही केस होगा, ये तो हमारा आर के सारे एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे या फिर डी के किसी के भी खत्म हो जाए, हमें वी हैव टू स्टॉप राइट देयर इटसेल्फ। तो वी आर कंटिन्यूइंग दिस लूप टिल द टाइम दिस वन क्यू इज नॉट एम्प्टी, आर आई डी एक्स एंड डी आई डी एक्स इज नॉट एम्प्टी। एक एक्स्ट्रा चेक जो हम शुरू में यहाँ पे रख सकते हैं कि कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि सारे हमारे जो एलिमेंट्स है वो एक ही पार्टी को बिलोंग करते हो, तो वी कैन पुट अ चेक हियर इटसेल्फ दैट इफ द साइज ऑफ आर आई डी एक्स इज 0 और इफ द साइज ऑफ डी आई डी एक्स इज 0, so accordingly we can
return the winner, right? Okay, but anyway, here what we are doing is that we are continuing in this loop. First we are popping out the index RIDX. Right now there is only one element, that is 0, so I will be having the value 0 and j will be having the value 1. So I value is what, 0, and j value is 1. 0 is less than 1, right? 0 is less than 1. So what we are doing, तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, here we were having RDD, ठीक है? So 0 is less than 1, right? ये जो लेफ्ट वाला है ये राइट की पावर को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आर ने डी की पावर को एलिमिनेट कर दिया. अब ये इसके पास कोई राइट नहीं, बट आर अभी भी पिक्चर में रहेगा, बट हमको क्या है, वी आर चेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स कि कौन सी इंडेक्स छोटी है, राइट? एंड जैसा कि एज आई मेंशन वी आर गोइंग इन द सर्कुलर वे, तो अब डी के पास पावर आएगा कि वो अपने क्लोज वाले को एलिमिनेट कर पाए. तो हम क्या करेंगे, हम अगेन दोबारा से ऐड कर रहे हैं. कैसे? हम यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, i प्लस 1. सो i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है अभी 0 प्लस n क्या है हमारा, इसका साइज कितना है 3. तो थर्ड इंडेक्स पे हम ये एक और r ऐड कर रहे हैं. अभी तो ये देखो, अभी तो हमने ये पोल करके ये दोनों r and d रिमूव कर दिए है ना, ये दोनों हमारे पास चले गए. अब d का तो कोई काम नहीं है हमें, बिकॉज इट हैज लॉस्ट ऑल द पावर्स, बट r की पावर्स तो रहेंगी. तो हम एक ये वाला r जो हमने वो शिफ्ट कर दिया. कैसे शिफ्ट कर दिया, हमने कर दिया RIDX डॉट एड i प्लस n. वाला r तो हमारा ऑलरेडी पॉप आउट हो गया है ना, ठीक है, राइट? तो ये चीज हमारे पास हो गई, है ना, ये चीज हमारे पास होगी. अभी भी हमारी ये कंडीशन ट्रू है ना, क्योंकि देखो एक एलिमेंट है. हमने यहाँ पे क्या किया, RIDX डॉट एट i प्लस n. तो IDX में अब हमारे पास क्या है, 3 है, राइट? एंड ये हमारा 1 तो देखो पॉप आउट हो गया था, ठीक है. तो अभी हमारे पास i की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, एंड j की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी. तो ये इफ कंडीशन नॉट गोइंग टू बी ट्रू, एल्स कंडीशन हमारी ट्रू होगी. तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखो हमने यहाँ पे ये ऑलरेडी पॉप आउट कर दिया ना, तो ये हमारा 3 भी चला गया, ये हमारा 2 भी चला गया, है ना, ये दोनों हमारे चले गए. बट अगेन देखो पावर हमारे पास किसकी चली गई, आर की चली गई, बट डी की पावर तो है ना. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि DIDX डॉट एड j प्लस n. जे की वैल्यू हमारी कितनी थी, j की वैल्यू हमारी कितनी थी, 2 प्लस 3 दैट इज 5. तो इसको हम ऐड कर रहे हैं, फिफ्थ इंडेक्स पे ऐड कर रहे हैं. ओके, तो अब देखो हमारे पास ये वाला हमारे पास टोटली रिमूव हो गया. तो ये वाली जो हमारी क्यू है, ये हमारी एम्प्टी हो गई, है ना, ये वाली क्यू हमारी एम्प्टी हो गई. तो अब हम क्या करें, ये हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे. देन हियर वी आर सिंपली चेकिंग कि विच वन इज एम्प्टी. अगर ये एम्प्टी है, अगर ये वाली क्यू हमारी RIDX क्यू हमारी एम्प्टी, तो विनर कौन है, डायर. अदरवाइज विनर कौन है, रेडिएंट, राइट? So that is what we are doing here. So I hope that is clear for you. So this was the logic for this particular problem. If talking about the time complexity, so what would be the time complexity, है ना? You tell me in the comment section what is the time complexity and the space complexity for this problem. And for this particular problem there are certain other approaches that has been discussed in the editorial. If you want to go through them just to get the sort of understanding like what all approaches that we do have to solve this particular problem, make sure to check the editorial. So that's it from my side. Thank you so much for watching this video. I hope that it helped. If it is so, then make sure to hit the like button, do subscribe my channel. Bye bye.